Hello guys, welcome back to the channel. So in this video we will see functions in C++. So we will see in detail what are functions, how we use functions, why we use functions. So let's start with what are functions. So in simple terms we can say a function is a block of code which is used to perform a specific task. So instead of writing same code multiple times, we can define one function for a specific task and we can call that function many times. Like whenever we require to perform that specific task, we can call that function. So function is a block of code designed to perform specific task. And in C++ we have two types of functions. One is predefined function and another is user-defined functions. In predefined functions, these are built-in functions like square root, absolute function, power function. Predefined or built-in means these functions definitions are already defined in language, C++ language, in libraries. These are math functions, so they are defined into math library. We don't need to define these functions. They are already, definition of these functions are already in math library. We can directly call them and use these functions. And what are user-defined functions? Functions which we define to perform a specific task according to our requirement. So we can say functions that we create according to our requirement. So this is called user defined function. So first type जो है वो देखते हैं हम predefined functions क्या होते हैं और predefined functions क्या होते हैं हमने देखा है अभी. हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं. तो हमें मेन फंक्शन के अंदर मैं एक स्क्वायर रूट निकालना चाहती हूँ. अगर मैं कोई भी नंबर है डबल डी एंड मैंने उसको लिया यूज़र से, उसकी वैल्यू ली एंड अभी मैं प्रिंट करना चाहती हूँ स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर. स्क्वायर रूट ऑफ डी इज SQRT of D. So here we can see I'm getting error because square root जो है, here we have to add maths library hash include. हमने सिर्फ iostream library ऐड करी है जो कि इसमें square root function नहीं है, define नहीं है, that's why we are getting that error. maths library ऐड करी maths.h, I think it is math.h. Yes, now we can see this error is gone. So here what we are doing, directly calling square root function and d is a parameter in this square root function. थ्रू जो भी हमें जिसका भी हमें स्क्वायर रूट निकालना है वो पैरामीटर हम स्क्वायर रूट फंक्शन में पास कर रहे हैं. अभी ये प्रिंट करके देखते हैं. सो एक नंबर एंटर करना पड़ेगा. 33 एंटर करते हैं. 33 पॉइंट समथिंग 3. स्क्वायर रूट ऑफ 33 इज 5.77062. सो अभी हमने देखा कि बिल्ट इन फंक्शन के बारे में. स्क्वायर रूट क्या है? बिल्ट इन फंक्शन है. अब ये हो गया बिल्ट इन फंक्शन के बारे में. सो लेट्स टॉक अबाउट यूजर डिफाइंड फंक्शंस. अगर मुझे कोई फंक्शन बनाना है तो क्या क्या चीजें आती है उसमें. तो एक आता है फंक्शन डिक्लेरेशन. सेकंड आता है फंक्शन डेफिनेशन एंड थर्ड आता है फंक्शन कॉल. तो एक एक पॉइंट हम देखते हैं. सो फंक्शन डिक्लेरेशन मतलब डिक्लेयरिंग अ फंक्शन बिफोर यूजिंग इट. फंक्शन डेफिनेशन मतलब whatever we want to perform
writing logic into the function is function definition. Whatever logic we want to do inside that function, through that function, that we write into function definition. And function call means हम जब मेन मेथड से या फिर किसी मेथड से उस फंक्शन को यूज करना चाहते हैं तो तब हम उस फंक्शन को कॉल लगाते हैं. जैसे कि हमने स्क्वायर रूट को कॉल लगाया मेन मेथड से, वही होता है फंक्शन कॉल. तो अभी हम खुद का एक फंक्शन डिफाइन करते हैं. सपोज मैंने क्या करा, void greet नाम से एक फंक्शन मैंने यहाँ क्या करा, यहाँ पे ऊपर सबसे ऊपर क्या करा मैंने, डिक्लेयर करा. डिक्लेरेशन we can write declaration of function. Now I want to write definition of greet function. जो भी लॉजिक इस फंक्शन में लिखना चाहती हूँ वो मैंने लिखना स्टार्ट करा. तो रिटर्न टाइप होता है void है. void रिटर्न टाइप मतलब क्या, ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा. अगर कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है, अगर सपोज इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो इंट रिटर्न टाइप आएगा ग्रीट फंक्शन का. तो void greet एंड इसमें मैंने लिखा सी आउट. सिंपल सा फंक्शन बनाते हैं, हेलो एंड सेमीकोलन दिया. सो ये मैंने डेफिनेशन ली, फंक्शन डेफिनेशन. तो हमारा फंक्शन क्या कर रहा है, ग्रीट फंक्शन क्या कर रहा है, सिर्फ प्रिंट कर रहा है हेलो. अभी फंक्शन कॉल क्या होता है, ग्रीट फंक्शन को कॉल करना. ये है फंक्शन कॉल. ये सारी चीजें करते क्यों हैं हम, फर्स्ट हम देखते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन क्यों. तो हम फंक्शन डिक्लेरेशन करके क्या बता रहे हैं प्रोग्राम को कि मैंने एक ग्रीट नाम से फंक्शन बनाया है इस कोड में. दिस इज कॉल्ड फंक्शन डिक्लेरेशन. अगर मैं ये मेथड कहीं और पे लिखती हूँ और मेन मेथड पहले रन हो रही है तो मेन मेथड को पता होना चाहिए, मेन मेथड से पहले ये रन होना चाहिए. सबसे ऊपर डिक्लेरेशंस आते हैं फंक्शंस के, क्योंकि हम हमारे प्रोग्राम को बता रहे हैं कि मैंने ये फंक्शन कहीं पे डिफाइन करा है. तो इसके नाम में ही बोला है फंक्शन डिक्लेरेशन. हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये फंक्शन हमने ऐड करा है. कहीं पे तो इसकी डेफिनेशन लिखी है. फिर हमने लिखी है फंक्शन डेफिनेशन. फंक्शन डेफिनेशन मतलब एक ब्लॉक ऑफ कोड है जिसमें हम लॉजिक लिख रहे होंगे, क्या फंक्शन से हमें चाहिए वो हम इस फंक्शन डेफिनेशन में लिख रहे हैं. और फंक्शन कॉल तो हमें पता है, फंक्शन कॉल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उस फंक्शन को हमें यूज करना है. जिस टाइम पे भी हमें उस फंक्शन को यूज करना है उस टाइम पे हम उस फंक्शन को कॉल लगाएंगे. अभी अगर मैंने कॉल लगाया, फंक्शन को क्या प्रिंट होना चाहिए, हेलो 2 टाइम्स प्रिंट होना चाहिए. वी कैन सी हियर हेलो 2 टाइम्स प्रिंट हो रहा है यहाँ पे. अभी फंक्शंस में क्या होते हैं, कुछ टाइप्स आते हैं बेस्ड ऑन रिटर्न टाइप एंड उसके पैरामीटर्स. तो फर्स्ट है फंक्शन with parameter and function with return type. So अगर हमें functions, हमारा ये जो greet function है, neither it is taking parameter nor it is having any return type. It's just void. It is returning void, मतलब it is returning nothing. So अभी के लिए हम इसको क्या करेंगे, कमेंट करेंगे. सो ग्रीट फंक्शन को भी कमेंट करना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है यहाँ पे. अब हम देखते हैं पैरामीटराइज फंक्शंस क्या होते हैं. सपोज मैंने एक नंबर लिया इंट n एंड इसमें वैल्यू मैंने रखी 10. अभी मुझे एक सम नाम से फंक्शन लिखना है और एक मैं वैल्यू लेती हूँ b विच इज 8. एक सम फंक्शन कॉल करा मैंने और मुझे क्या चाहिए, उस सम फंक्शन में n एंड b पास करने हैं. तो इसे कहते हैं पैरामीटराइज फंक्शन. तो इसकी डेफिनेशन एंड डिक्लेरेशन करना है हमें. तो हम किस तरह से लिख सकते हैं, void रिटर्न टाइप सम फंक्शन का void है सम एंड वो 2 पैरामीटर्स ले रहा है जो कि इंटीजर टाइप के हैं, int a, int b.
एंड सेमीकोलन। ये हो गया डिक्लेरेशन। अभी डेफिनेशन लिखनी है, वॉइड सम, दो पैरामीटर्स यहाँ पे रिसीव करने, इंट ए इंट बी, एंड इसका लॉजिक लिखना है। मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है सम, सी आउट ए प्लस बी। यहाँ पे एक स्टेटमेंट डालते हैं, सम इज ए प्लस बी। ओके, सो सिंपल सा प्रोग्राम लिखा है हमने। इट टेक्स समथिंग बट रिटर्न्स नथिंग, मतलब ये वॉइड रिटर्न करता है, कुछ भी रिटर्न नहीं करता, बट पैरामीटर्स है हमारे पास। तो ये रन करके देखते हैं। बेसिकली ये हमारे पास एरर है। ओके, विदाउट सेलेक्ट करके ये करते हैं, रन करते हैं। यस, हम यहाँ पे देख सकते हैं सम इज 18। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, एन एंड बी जो पैरामीटर्स में हमने वैल्यू पास करी है वो पास हो रही है सम फंक्शन में, और हमारा सम फंक्शन क्या कर रहा है, ए प्लस बी सिंपली सम करके प्रिंट कर रहा है। अभी अगर मुझे कुछ रिटर्न करना है, सम यही सम रिटर्न करके यहाँ पे प्रिंट करना है सपोज, या फिर यहाँ पे एक वैल्यू सम नाम से लिखनी है और यहाँ पे इसको स्टोर करना है इस सम में, और देन मुझे प्रिंट करना है सी आउट सम। तो इस सम फंक्शन को कुछ तो रिटर्न करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं रिटर्न, रिटर्न कीवर्ड की हेल्प से हम रिटर्न कर सकते हैं, बट इसका टाइप भी सेम होना चाहिए। अभी क्या करा मैंने, ए प्लस बी रिटर्न कर रहे हैं, बट इंटीजर टाइप का वैल्यू हमें रिटर्न करना है। तो डिक्लेरेशन में भी वही लिखना पड़ेगा, इंट। तो अब देख सकते हैं हम, ये क्या कर रहा है, एक वैल्यू रिटर्न भी कर रहा है, देन इट इज टेकिंग टू पैरामीटर्स, एंड रिटर्न की हेल्प से जब भी अगर कोई रिटर्न टाइप हमने लिखा है तो ये रिटर्न स्टेटमेंट और उस टाइप का, उस डेटा टाइप का वैल्यू रिटर्न होना चाहिए फंक्शन से। दिस इज मैंडेटरी थिंग। और अब हम इसको रन करते हैं। यहाँ पे क्या एरर है, ओके, हम एक ही नाम दे रहे हैं फंक्शन और वैल्यू को, और someone, now we can print। अब ये 18 प्रिंट करेगा, यहाँ पे कॉल होगा फंक्शन को, देन जो भी सम होगा इसमें स्टोर होगा, और हमने सी आउट की हेल्प से इसको प्रिंट करा है। सो इसको बोलते हैं फंक्शंस विथ पैरामीटर्स एंड फंक्शन विथ रिटर्न टाइप। एंड ये जो टाइप था टेक्स समथिंग एंड रिटर्न समथिंग टाइप का था। तो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम फंक्शंस को पैरामीटर पास करते हैं, रिटर्न टाइप हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। तो ये बेसिक सा आइडिया हमें हमारे दिमाग में अगर होता है तो हम हमारे खुद के फंक्शंस लिख सकते हैं। तो दिस इज अबाउट टुडेज वीडियो। आई विल गिव यू वन क्वेश्चन ऑन फंक्शंस। राइट अ प्रोग्राम write a program to find out factorial of a number। तो आपको एक खुद का फंक्शन बनाना है, तो आपको एक खुद का फंक्शन बनाना है जिससे आप फैक्टोरियल फाइंड आउट करो गिवन नंबर का। तो यू कैन राइट डिफरेंट वेज में राइट कर सकते हो, जैसे कि कुछ रिटर्न टाइप रखो, एक बार विदाउट रिटर्न टाइप डायरेक्टली फंक्शन में ही प्रिंट करो फैक्टोरियल। इस तरह से डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ट्राई करो फंक्शन के। एंड अगर कोई डाउट है तो कमेंट में बताओ। एंड दिस इज फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक टू द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।